जिस तरह इस संसार में रहने वाली हर वो चीज़ जिसमें जीवन हो उसे प्रकृति के द्वारा बनाए गए जीवन चक्र से गुजरना ही पड़ता है, उसी तरह इतिहास के पन्नों में दर्ज हर साम्राज्य को भी इसी जीवन चक्र से गुजरना पड़ा है। उद्गम, चरम और अंत। मैं और मेरे दोस्त पिछले कई सालों से उस जगह को देखना चाहते थे जो भारतीय इतिहास के एक महान साम्राज्य के उत्थान और दर्दनाक अंत का प्रत्यक्ष साक्षी बना। इंटरनेट पर थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमने हमारे सफ़र की शुरुआत की पुणे से। जिस शहर हम जा रहे हैं वो अपनी वास्तुकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। 12 घंटों के सफ़र और 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आखिरकार पहुँचे हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। During the 14th century, the Tughlaq Sultanate of Delhi, which later became the foundation of Bahmani Empire of the Deccan, started entering the southern India. Vijayanagara Empire came into existence as a direct response to these incursions. In the year 1336, on the banks of Tungabhadra river, two brothers, Hariraya and Bukkaraya, laid the foundation of Vijayanagara Empire with the help of Jagadguru of Sringeri Shaldapeeth, Shri Vidyaranya. Both the Bahmani and Vijayanagara Empire wanted to control the region of Raichur Doab. It is known as the rice bowl of southern India. This was one of the major reasons for the conflict between these two empires for the next 200 years. Then came the most powerful and greatest emperor, Shri Krishna Deva Raya, who reigned Vijayanagara between 1509 1529. Towards the north, he defeated the Bahmans completely. In 1518, the Bahmani Sultanate collapsed and it got split into 5 independent states: Ahmednagar, Golconda, Bidar, Berar, and Bijapur. They were collectively known as Deccan Sultanates. Slowly, Vijayanagara took control of the entire southern India, and towards the east, they successfully defeated the Gajapathis of Orissa. During Krishna Deva Raya reign, Vijayanagara reached its zenith in terms of art, architecture, revenue, and army. According to Domenico Pace, a Portuguese traveller, Krishna Deva Raya was the most feared and perfect king there could possibly be. A group of 8 scholars adorned his court, and they were known as Ashtadikgajas. I'm sure we all must have heard about one of them, the famous Tenali Ramakrishna. In the year 1565, the sultans formed an alliance and waged a war against Vijayanagara. The event is popularly known as Battle of Talikota. In the beginning, Vijayanagara forces gained an upper hand, but they relied more on war elephants, while the sultans relied more on cavalry, which later gave the Deccan army an edge. Vijayanagara had a massive infantry, but on the other hand, the Deccan army had a strong artillery force. At the critical point of the war, 2 commanders of Vijayanagara army shifted their loyalty towards the sultanates and started a subversive attack against their own army. Due to all these reasons, Vijayanagara lost the battle. The army of sultanates plundered the city of Hampi and reduced it to the ruins in which it still remains. हम्पी आने से पहले हमें इस जगह की थोड़ी जानकारी थी, पर यहाँ आकर लोकल से बात करने के बाद हमें पता चला कि हम्पी के तार सिर्फ विजयनगर साम्राज्य से नहीं, पर भारत के सबसे गौरवशाली इतिहास रामायण और किष्किंधा राज्य से भी जुड़े हैं। हमने हमारे दिन की शुरुआत की मातंगा हिल से, जो कि काफ़ी फेमस सनराइज पॉइंट भी है। रामायण के अनुसार यह ऋषिमुख पर्वत था और इसी जगह पर ऋषि मातंगा रहा करते थे। एक दिन वानर नरेश वाली ने धुंधवी नामक राक्षस का अंत किया और क्रोध में आकर उसकी लाश को इस पर्वत पर फेंक दिया। इस बात से नाराज होकर ऋषि मातंगा ने वाली को श्राप दिया
कि अगर उन्होंने कभी भी इन पर्वतों के आसपास आने की कोशिश की तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। आगे चलकर जब वाली और उनके भाई सुग्रीव में शत्रुता हुई और वाली ने सुग्रीव को मारने की कसम खाई, तो सुग्रीव ने इन्हीं पर्वतों पर शरण ली, क्योंकि वे जानते थे कि वाली यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। सीता माता की खोज में निकले प्रभु श्री राम भी यहीं पर सुग्रीव से पहली बार मिले थे। हम निकले तो थे ये सोचकर कि सुबह की पहली किरण के साथ सूर्य को नमस्कार करेंगे, पर नहीं जानते थे कि शिखर पर पहुंचकर कुछ ऐसा नज़ारा देखेंगे जिसे देखकर तो हर सुबह खुद सूर्य सलामी देते हैं। मातंगा हिल से लौटकर हमने कुछ देर आराम किया और फिर निकल पड़े हम्पी के उन प्रसिद्ध मंदिरों को देखने जो अपने आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विट्ठला टेम्पल, जहाँ पे चैरिट रहता है जो हमें 50 रुपीज़ के नोट के पीछे मिलता है। अरे है, मैंने ले लिया। चल ये सभी मंदिर पहाड़ों और चट्टानों के बीच है। इन तक पहुंचने का रास्ता इतना खूबसूरत है कि आंखें चौंधी आ जाती हैं। Vijay Vithala temple is dedicated to Lord Vithala, an incarnation of Lord Vishnu. It was built during the reign of King Devaraya II, 1422 to 1446. The iconic chariot was built by Sri Krishna Devaraya during the 16th century. It is said that Krishna Devaraya was so impressed with the sun chariot of Konark that he wanted a similar chariot in his empire too. The large Rangamandapa is well known for its 56 musical pillars. These pillars are also known as Saregama pillars, which are attributed to the musical notes emerging out of them. The Britishers were mystified by this and they actually cut one of the pillars to see how it was done. It was just granite, classic example of a very careful workmanship. After Krishna Devaraya, his younger brother Achyut Raya took over the empire. He built a magnanimous temple between the Gandhamandana and Matanga hills. Even after being destroyed by the Deccan army, the temple ruins still looks awe-inspiring from the Matanga hilltop. The Virupaksha temple is dedicated to Virupaksha, a form of Lord Shiva. It was built by Lakkandandesha, a Nayak under the ruler Pradhadevaraya. It is the main center of pilgrimage at Hampi and had been considered the most sacred over the centuries. पहला दिन मंदिरों के बीच गुजारने के बाद अगला दिन हमने बिताया उन जगहों को देखने में जहाँ से राज्यभार संभाला जाता था, पैलेसेस, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन एंड कल्चरल सेंटर्स। ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, प्रौढ़देवराया, मुद्दप्पा, मारप्पा, ऐसा बोल के टोटल 11 किंगडम वाला वो टोटल मिल के 48 मेंबर्स राजा लोग रहते थे। अच्छा। फिर लास्ट में अलिया रामराय बोल के रहता था सर 1565 में। अच्छा। वो राज्यभार करने के टाइम में वो आके इधर में अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, रायचूर, बीदर बोल के टोटल 5 किंगडम वाला आके अटैक करके सब पूरा विजयनगर साम्राज्य को नाश करने के हिसाब से पूरा ध्वंस कर दिया सर। डेमोलिश करने के बाद में सब पूरा ऐसा ही पड़ा है सर। पहले इधर ब्रिटिश म्यूजियम रहता था सर, फिर बाद में मद्रास म्यूजियम आया। मद्रास म्यूजियम होने के बाद में अभी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आया सर। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आने के बाद में इधर में सब पूरा एक्सकवेशन करने का, खुदाई करने का, फिर बाद में अभी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला मेंटेन कर रहा है, लेकिन यूनेस्को से फंड आता है सर। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज हम पे एक टैंक बना दिया सर। ये टैंक इधर ही सिंगल स्टोन का पूरा सिंगल
सिंगल स्टोन का टैंक कट करके, हाँ। टैंक के अंदर में पानी डाल के रंग बनाता था सर। रंग बना के इधर में होली का दिन में इधर में रॉयल फैमिली लोग आके इधर में होली खेलने के लिए ये वाला होली टैंक निर्माण किया। विजयनगर साम्राज्य मोनोलिथ स्ट्रक्चर्स बनाने में काफ़ी रुचि रखता था। इसके हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि 10 फीट का शिवलिंग हो या 21 फीट लंबी नरसिम्हा की मूर्ति। उसको दशहरा दिब्बा बोलते हैं सर। उसका फुल नाम बोलता है महानवमी दिब्बा बोल के। महा मतलब बोले से बड़ा होता है, दिब्बा बोलने से स्टेज होता है, नवा बोले से 9 दिन होते हैं सर। हर साल मैसूर में मनाया जाने वाला फेमस दशहरा फेस्टिवल यहीं से शुरू हुआ था। तालीकोटा युद्ध के बाद जब इस जगह को जला दिया गया तो उसके बाद से लोगों ने इस महाउत्सव को मैसूर में मनाना शुरू किया। इधर में उसी टाइम में इधर में आसपास बहुत सारा कम रहता था सर। उसी के लिए वो क्या कर रहे हैं, इधर में पर्शियंस, मंगोलियंस, अरबियंस लोग ने उसका गांव के हिसाब से आसपास लेके आता था सर। अच्छा, मंगोलियंस लेके आते थे हॉर्स यहाँ पे, आसपास लेके आके इधर में गोल्ड सोना सब पूरा विदेश में परचेजिंग होता है। ट्रेडिंग होती थी घोड़ों के बदले में। इधर टोटल आके 5 बाजार है सर। 5 बाजार मतलब बोले से विरूपाक्षा बाजार है, 5 सुपारी बाजार है, अचुतराया बाजार, कृष्णा बाजार, विठला बाजार होके टोटल 5 बाजार रहता था। अलग अलग से एक मार्केटिंग होता था सर। ऐसे सबसे वो लोग ने रहने के लिए सब पूरा लेखाधिकारी लोग बोलते हैं ना, ऐसे सब ना वो लोग रहने के लिए वो सब पूरा मंडप सब सारा रहता सर। उसके ऊपर में पिलर सब सारा गिरा दिया सर। ओनली फाउंडेशन खाली बचाया है सर। Vijayanagara had a good water supply system. The water tanks are popularly known as pushkarnis. ऐसा वाला पत्थर का नाला का कंडीशन किया हुआ रहता था सर। सभी पूरा टूट गया सर। इधर में सामने देख सकते हैं सर, ये वाला रोमन सिस्टम के हिसाब से वाटर टैंक है सर। वाटर पाइप कलेक्शन, हाँ ऐसा फ्लो के हिसाब से इधर से डाउन लेवल में इधर में वाटर टैंक सब सारा रहता था सर। उधर में जाके गिरता था। उधर में सामने एक वाटर टैंक है, इधर एक वाटर टैंक। वो पुष्करनी यही है क्या? हाँ यही है। अगली चीज़ जिसने हमें अचंभित किया वो थे पत्थरों पर बनी थालियाँ। यहाँ एक बार में कई 100 लोगों को एक साथ बिठाकर खाना खिलाया जाता था। इसकी 2 कतारें हुआ करती थी और इनके बीच से एक छोटा सा रास्ता गुजरता था। उसे खाना परोसने और बाद में सफाई के इस्तेमाल में होने वाले पानी को बहाने के लिए यूज़ किया जाता था। ये वाला पत्थर रॉक कटिंग करने का डिजाइनिंग है सर। लेकिन ऐसा तो 2 फीट का 2 इंच के हिसाब से अंदर में होल करके इसका अंदर में लकड़ी का पीस डाल के इसका अंदर में पानी डालता था सर। पानी लकड़ी के हिसाब से पूरा मोटा होता था। मोटा होकर तो पूरा टाइट हो जाता ना सर, कटक करके पूरा ओपन होता था। फिर बाद में इसको छोटा का हिसाब से, लेकिन 3 फीट 4 फीट कितना फीट का हिसाब से चाहिए उसी टाइम में चीज़ला और ऐसा मार के छोटा छोटा करके ये वाला कटिंग करता था। लेकिन कल्चरल प्रोग्राम सब सारा करने के लिए ये वाला स्टेजेस को यूज़ करता था सर। फिर बाद में इसमें डांसिंग हॉल बोल के कैसा पता चला बोलने से इधर में देख के दांडेला, भरतनाट्य, हर तरफ का डांसिंग, कार्विंग सब पूरा इधर में कार्विंग सब सारा बना हुआ है। यहीं पास में हजारा रामा टेम्पल है, जिसकी दीवारों पर संपूर्ण रामायण को दर्शाते हुए नक्काशी की गई है। तो वहीं दूसरी ओर एलिफेंट स्टेबल और लोटस महल भी काफ़ी खूबसूरत है। After understanding the modus operandi of Vijayanagara administration, it was time for us to take a break. We set out to see the beautiful lush green places of Hampi. And also spend some good time in the chilled water of Sanapur Lake. Hampi made me realize that history is not only meant to be read but experienced. और ये तभी संभव है जब हम खुद उस जगह को देखें। If you look at this place with a modern day view, you'll see nothing but a pile of rocks. But as soon as you come out of your modern thinking and take yourself back to that era, it's then you feel the grandness of this place. Even in the absence of modern day technologies, humans were able to build such a grand city with complex structures. This made me think that though we, the modern world people, might be ahead of them in terms of technology, but they were equal or maybe way ahead of us in terms of art, culture, intelligence, administration, religions, and perseverance.
आज भले ही वो हमारे बीच न हो, पर उनकी इस धरोहर को संजोए रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है। शायद तभी आने वाली पीढ़ी और समय हमें उनकी यादों में संजोए। हम्पी में बिताए ये कुछ क्षण मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं, और अब ये मेरी ज़िंदगी के इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय बन चुका है। If you like this whole experience, then please like, share and subscribe. Please share your thoughts in the comment section.